Hello all, welcome to Get Set Law. In today's video, we'll be talking about what are the most important things that you should be focusing on when only 20 days are left for your 3-year LLB exam. MHCT 3-year exam is all set to be scheduled on 12th or 13th of March. So let's wait for the admit card to come out. But till then, what all topics or what all things are important for you all we will be discussing in today's video. So make sure you're watching this video till the end. So first of all, the exam is scheduled on 12th or 13th of March. Admit card is not out yet. So we have to wait for admit card to come out to see on which days the exam is there and where you will get your centers. Apart from it, अगर question का paper का pattern समझे, so 120 minutes मिलता है to solve 150 questions. MCQ based questions होता है without any negative marking. So even if you attempt incorrect questions, there will be no negative marking. This give you an edge that you are supposed to mark each and every answer in your paper. You are not supposed to leave any questions कि नहीं होगा तो negative marking होगी, marks deductions होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. So make sure even if you don't know the answer, you are marking every question in the exam. Now 150 questions का breakup समझ लेते हैं. तो सबसे पहले language comprehension से you will get approximately 50 questions. Current affairs and static GK से you will get approximately 40 questions. Legal reasoning and logical reasoning से 30 questions each आते हैं, which makes it to 150 questions. So total you will have 150 questions, MCQ type questions for your exam. The most important thing that you should be doing for next 20 days is making a schedule. आप एक schedule बनाओ जिसमें आप mock test को तो for sure include करो, but last day तक mock test नहीं देना है. Mock test क्या कब तक देना है? So 7th of March आपका last date होना चाहिए जब आप mock appear कर रहे हो. After that, make sure आप mocks के बाद analysis पे focus कर रहे हो कि आपका mistake क्यों हो रहा है. अगर आपने एक topic पढ़ा है तो आपका mistake उस question में क्यों हो रहा है, क्यों वो topic का question आप सही से नहीं mark कर पाए. So make sure you are analyzing those mistakes and then you are resolving the question. अगर आज mock solve किया है, आज analysis किया है, तो after 2 days you are still solving the questions or maybe giving it a look कि कहाँ पे mistake हुआ था, let me relook those questions. So वो आपके लिए important होगा जहाँ पे आप अपने mistakes को समझ पाएंगे and you will be able to move ahead from those mistakes. अब लास्ट के दिनों में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होता है? मॉक्स पे एंड रिवीजन पे. मॉक्स तो हमने समझा कि कब तक करना है, कैसे करना है. नाउ व्हाट अबाउट रिवीजन? रिवीजन आपको रेगुलरली करना है. रिवीजन किन चीजों का? सबसे पहले स्टैटिक लीगल जीके का. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है. स्टैटिक जीके का टॉपिक्स मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये सारे जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था तब भी बताया था. आज के वीडियोज में भी मैं आपको कुछ और टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा सेग्रीगेट करके कि आपको अब किन पे फोकस करना है. अपार्ट फ्रॉम इट आपको करंट अफेयर्स पे, सो जनवरी 2023 से आइडियली आपको फरवरी 24 तक करना है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेक श्योर कि आप कम से कम नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी का मंथ कवर कर रहे हैं बिफोर मूविंग अहेड टू एनीथिंग एल्स. लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं. ट्रिक्स क्या होते हैं, टिप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. अपार्ट फ्रॉम इट वर्बल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रीजनिंग के. एक बार थ्योरी पढ़ के जाइएगा. आपके रनिंग नोट्स होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे, बुक्स पढ़ा होगा, जो भी आपके रनिंग नोट्स है उनको एक बार रिवाइज करके जाइएगा. मैगजीन्स पढ़ के जाइएगा. इन सब से आपको क्वेश्चंस रहते हैं. एंड एक छोटा सा लुक मैथ्स के फॉर्मूलाज को भी दे दीजिएगा. हमने देखा था पेपर एनालिसिस में कि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के फॉर्मूलाज या मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे 23 में. सो हम एक चांस नहीं लेंगे, हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मूलाज देख करके जाएंगे. सो मेक श्योर कि ये सारे सब्जेक्ट्स का आप एक रिवीजन का शेड्यूल बना रहे हो कि हर दिन कम से कम 2 सब्जेक्ट से 2 से 3 टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो अलॉन्ग विथ अपियरिंग इन मॉक एवरी डे. और अगर हर दिन नहीं कर पा रहे हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे मेक श्योर यू आर अपियरिंग इन मॉक टिल 7th of March. उसके बाद पूरा का पूरा फोकस आपके रिवीजन पे होगा, मिस्टेक्स के एनालिसिस पे होगा, आपने कहाँ मिस्टेक किया था उसको रीलुक करने पे होगा. यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फोकस होगा. So now one of the most important question or most asked question if I must say is कि किस पे फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट पे या एक्यूरेसी पे. सो
I will tell you one thing, that both time management as well as accuracy is very important. आपको एक बैलेंस बना के चलना है. ये बैलेंस कैसे बनेगा? इसके लिए आपको जितने सेक्शंस है उसके लिए अपना टाइम डिवाइड करना है, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेगा वो एक क्यूमुलेटिव स्कोर मिलेगा. आपका सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं है, तो आपको एक क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है या कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है. सो मेक श्योर कि इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लीगल, सो यू आर जस्ट सॉल्विंग लीगल फॉर द एंटायर 2 hours, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. आपको बाकी सारे सेक्शंस पे भी टाइम इक्वली डिवोट करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जीके, सो जीके में इट इज वन लाइनर. अगर आपको वो टॉपिक आता है, आपको वो क्वेश्चन आता है, तो आपने करेक्ट आंसर मार्क किया, अदरवाइज यू कैन मार्क द answer that you think is more appropriate and then you can move ahead. So approximately 10 to 15 minutes में आपके 40 questions हो जाएंगे. So यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो. अब अगर हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो हमें पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा ज्यादा टाइम जाएगा. सो टॉपिक्स लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो, जो कि आप डिवोट करो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 10 मिनट्स पर पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं देना है. आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट का टाइम लेके आपको पैसेज पढ़ना है, और बाकी के टाइम पे आपको 5 या 6 क्वेश्चंस जो भी हैं कॉम्प्रिहेंशन में वो सॉल्व करने हैं. तो 5 to 7 minutes ऑन वन पैसेज, नॉट 10 minutes. इससे आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज होगा. अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली फॉर द इंग्लिश सेक्शन जो आपको टाइम डिसाइड करना है, दैट शुड नॉट एक्सीड 30 to 35 मिनट्स. आपको 30-35 मिनट्स में इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करके यू हैव टू मूव अहेड टू लीगल सेक्शन. लीगल सेक्शन में अब आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, साथ साथ फैक्ट्स पढ़ना है. तो अगेन यू कैन डिवाइड अप्रोक्सीमेटली 30-35 मिनट्स फॉर लीगल सेक्शन, एंड नाउ यू हैव टू मूव अहेड टू लॉजिकल सेक्शन, जहां पे आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो आपको वहां के लिए टाइम थोड़ा सा अपना मैनेज करके रखना है. आपको टाइम थोड़ा सा बचा के रखना है कि आप 40-45 मिनट सेव कर रहे हो फॉर लॉजिकल सेक्शन. सो डिवाइड योर टाइम, कैरी द एनालॉग वॉच, डोंट कैरी द स्मार्ट वॉचेस, कैरी द एनालॉग वॉच, उसको साथ में रखो. बिकॉज आपका टाइमर वहां पे 2 hours का होगा, बट आप सेल्फ टाइमर डिसाइड कर सकते हो फॉर डिफरेंट सेक्शंस. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मैनेज एक्यूरेसी एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट. एक बार टाइम लिमिट अप हुआ, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन. एक बार टाइम लिमिट अप हुआ, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन. बिकॉज क्या होता है, एक बार एक सेक्शन को सॉल्व करने के चक्कर में हम दूसरे सेक्शंस जहां पे एक्चुअली हमें मार्क्स आ सकते थे वो मिस कर देते हैं. सो हमें ऐसे इमोशनली अटैच नहीं होना है. हमें कोशिश करना है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मार्क्स ओरिएंटेड होकर के सोचना है कि हमें मार्क्स कहाँ से मिल सकते हैं. अगर लीगल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो हमें जीके से मार्क्स मिल सकते हैं, हमें लॉजिकल से मार्क्स मिल सकते हैं. सो आपको कैसे मिलेंगे वो मार्क्स? व्हेन यू मूव अहेड टू दोस सेक्शंस. सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ स्टिकिंग टू जस्ट वन सेक्शन फॉर द एंटायर 2 hours, right? Solve every paper, solve every section in the entire span of 2 hours. सो अभी तक हमने देखा कि आपको इन लास्ट 20 डेज किन किन टॉपिक्स पे या किन किन इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है, रिवीजन पे फोकस करना है, मॉक्स पे फोकस करना है. अब हम टॉपिक समझ लेते हैं कि अगर आप लीगल का सेक्शन करना चाह रहे हो रिवीजन, तो आपको किन टॉपिक्स पे एम्फेसिस देना है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 2 years पेपर्स आर दैट यू नीड टू रिवाइज फर्स्ट बिफोर यू मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन. विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक डेफिनेशंस, पार्ट 1 से आपको बहुत फोकस करना है. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पे टॉपिक्स लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन सबसे बहुत क्वेश्चंस आए थे. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ये टॉपिक्स आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है. इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस एग्जाम, जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इलेक्शंस इसके बाद इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम इट आपको थोड़ा सा एम्फेसिस देना है ऑन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन पे. इन सब से भी क्वेश्चंस आए थे. इसके साथ साथ आपको क्रिमिनल लॉ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ये सब पे भी थोड़ा सा एक बार आपको देखना है. अब जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्पेसिफिक टॉर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसमें भी ट्रेसपास, डेफेमेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्ट्स. जनरल डिफेंसेस थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. अब नेक्स्ट इज फैमिली लॉ. हमने 2 साल में देखा है कि फैमिली लॉ से थोड़े कम ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट आए हैं क्वेश्चंस. और इस बार काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था यूसीसी से रिलेटेड. सो थोड़ा सा यूसीसी के बारे में पढ़ के जाइएगा. एंड मैरिज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली लॉ. सो मैरिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जाइएगा. मिसलेनियस लॉज में माई रिकमेंडेशन वुड बी दैट यू गो विद द टॉपिक्स दैट आर मोस्टली आस्क्ड, जैसे कि आईपीआर में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी आप मॉर्टगेज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो. आप लियन से रिलेटेड
रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हो, लीज के बारे में पढ़ सकते हो, गिफ्ट के बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग सेक्शन. जब आप लीगल रीजनिंग सेक्शन को रिवाइज करेंगे तो इन सब टॉपिक्स को आपको एक कर्सरी लुक देना है, आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, अपने रनिंग नोट से करना है, मॉड्यूल है कुछ तो उससे रिवाइज करना है. सो वट एवर रिसोर्स यू हैव, आपको उससे एक बार रिविजन करना है फॉर लीगल रीजनिंग. नेक्स्ट इज वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में हमने देखा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3 आते हैं. सो ये 20 डेज में आपको हर दिन 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है. टाइमर के साथ करना है कि 7 मिनट्स में या 8 मिनट्स में एक कॉम्प्रिहेंशन खत्म करना है. सो मेक श्योर कि आप हर दिन एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सबसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. आइडम्स एंड फॉरेन फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं. अब नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जब यहां तक आप सब कर लो, देन यू मूव अहेड टू ग्रामर. सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट एंड टेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू ग्रामर सेक्शन. सो ये सबको रिवाइज करिएगा तो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बहुत हद तक कवर हो जाएगा. आपका 85-90% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा. कुछ क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ब एडवर्ब से मिल जाएंगे, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. बट वन, यू हैव टू फोकस मेनली ऑन रिविजन ऑफ दीज टॉपिक्स. वंस यू आर डन, तब आपको और टॉपिक्स के रिवीजन पे फोकस करना है. नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. करंट अफेयर्स में आपको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रिवीजन करना है, दैट विल बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. इसके बाद आपके पास अगर स्पेस बचता है तो जून से लेकर के अक्टूबर तक का भी रिवीजन कर लीजिएगा. एंड आइडियली आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए फ्रॉम जनवरी 23 टिल फरवरी 24. बट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपका कितना कवर्ड है, आपके पास कितने नोट्स हैं, उसके बेसिस पे रिवाइज कीजिएगा. सो स्टार्ट विथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. ये 4 महीने आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स. उसके बाद मूव अहेड, स्लोली बैकवर्ड रिविजन कीजिएगा. अक्टूबर का पहले कीजिएगा, देन उसके बाद सितंबर का कीजिएगा. तो ऐसे बैकवर्ड मूव कीजिएगा सो दैट कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट मंथ्स कवर होते जा रहे हैं. नाउ कमिंग टू स्टैटिक जी के टॉपिक्स, सम ऑफ द टॉपिक्स जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, दैट वर आर्ट्स एंड लिटरेचर्स, अवार्ड्स, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस, रिवर्स वगैरह के बारे में, कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में, डांस फॉर्म्स कौन से होते हैं, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज क्या है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल डेज. तो ये आपको एक लिस्ट होनी चाहिए. फर्स्ट पर्संस, फर्स्ट पर्सनालिटीज, फर्स्ट इवेंट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल. इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको कवर करना है. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें स्पेस भी कवर होता है. सो स्पेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं. इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे. सो मेक श्योर यू आर कवरिंग दीज टॉपिक्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक जीके. रेस्ट ऑल और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने हमारे पेपर एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट वीडियो ऑल्सो, कि अगर आपके पास स्पेस बचता है सो यू कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स नेक्स्ट बिफोर मूविंग अहेड टू एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनालॉजी से थे, डायरेक्शन से थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स से थे. सो लॉजिकल रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो टॉपिक्स आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एनालॉजी, स्टेटमेंट असम्पशंस, कंक्लूजन्स, इन्फरेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको आते हैं. सो आपको यहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस करना है एनालॉजी में, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट. इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनालॉजी. नाउ if we talk about analytical reasoning, direction is most important topic, blood relation, after that clocks and calendars, puzzle, and after that sitting arrangement. तो ये सारे questions important है. ये सारे topics से हमने questions देखा है. apart from it, coding decoding भी आप कर सकते हो, and odd man out, ये सारे topics से questions बहुत ज्यादा थे. तो ये सब आपको अच्छे से revise करके जाना है before you move ahead to any other topic. लास्ट, एज आई वॉज ऑल्सो मेंशनिंग, कि मैथ्स का थोड़ा सा फॉर्मूला देख के जाना है, बिकॉज लास्ट ईयर के पेपर में 2-3 क्वेश्चंस थे. तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक द मिस्टेक कि हमें आता हुआ क्वेश्चन जस्ट बिकॉज हमें फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया हुआ था इतने टाइम से, इसलिए हमने छोड़ दिया. सो बेसिक फॉर्मूला देख के जाना है ऑन स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियोज, इन सब पे एक बेसिक फॉर्मूला देख करके जाना है. आपको बहुत हाई लेवल नहीं पूछेंगे मैथ्स, बट ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं दिस ईयर इटसेल्फ. सो मेक श्योर कि आप ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाओ.
So that is it. That is how you are going to make this last 20 days count. Each and every day you can make sure ki whatever topics you have covered, whatever things you have covered, make sure you're dropping it in the comment box, so that even you are accountable ki aaj maine ye sare topics kar liye hain, kal ke din mein I'll be covering these topics. When you take responsibility, accountability comes, so make sure ki aap accountable ho rahe ho, you're mentioning everything in the comment box, so that even I can keep a check ki aapne 20 days ko use किया है. And also let me know how did you find the video, if this video was useful for your exam or not. Till then, make sure to like the video, subscribe to our channel, and thank you so much for watching the video.